Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from the book It So Happened. Chapter 9 The Comet, first part. Okay, so the chapter The Comet is divided into two parts. Chapter number 9 The Comet first, and the second chapter 10 The Comet second. Okay, so this chapter is basically bifurcated into two parts. We are going to start the first part in chapter 9. So before you read, a new comet has a new comet has appeared in the sky and is heading straight for the earth. A head-on collision, which is nearly unavoidable, will mean the end of life on this planet. Scientists and religious leaders react to this situation in two different ways. What happens to the comet? Now, what is saying that basically the meaning of comet is discovery of celestial bodies. Okay, celestial bodies in the sky are known as comet. So, here it is saying that a new comet has appeared in the sky and now it is heading straight towards the earth, and soon they are going to have a collision which is nearly unavoidable, and that is unavoidable, and it will cause a huge loss to the life on the planet. Scientists and religious leaders are taking steps in different ways. Now we are going to study what will be happen to the comet. So we are going to cover the first part first. Datta, an amateur scientist, can't stay away from the keen-eyed Dibya Chakshu for long. Dibya helps him achieve his secret ambition. So Datta Das' wife Indrani Devi wishes he hadn't found the object of his search. Now there it is saying that Datta Das is an amateur scientist. Amateur means unprofessional scientist, and he can't stay away from his Dibya Chakshu. Now Dibya Chakshu is what? It is his telescope, and he given that telescope the name is Dibya Chakshu. Through this Dibya, he want to fulfill his secret ambition. Secret ambition means his secret dream, his secret aim. He want to complete that. Datta Das' wife Indrani Devi wishes he hadn't found the object of its search. Datta Das' wife, now she is very upset, and she wishes every time that Datta Das never found his telescope. Let's start the chapter now. It was a moonless night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Now it is saying that it was a moonless night in December. दिसंबर में मूनलेस लाइट थी. ठीक है, बिल्कुल मून नहीं था. क्या हो रहा था? ठंडी हवा जो थी वो विंडो से होती हुई अंदर जा रही थी रूम में, और इससे क्या हो रहा था? इंद्रानी देवी जो थी, दत्ता दास वाइफ, शी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब. Half awake she felt for the adjoining pillow, although she knew the answer. Dattada was not there. अब क्या हुआ? आधी सोई हुई थी वो, जब आधी उठ गई तो क्या हुआ? उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें पता था कि दत्तादा जो है वो बेड पे बिल्कुल भी नहीं होंगे. सो ही हैज़ गॉन टू हॉपनॉप विद दैट रेज्ड दिव्या. तो क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला कि अब जो है वो वापस से हॉबनॉप का मतलब होता है फ्रेंडली टॉक. ठीक है, वो वापस अपने दिव्या चक्षु के पास ही चले गए होंगे बात करने के लिए. एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर टू क्लोज द डोर. उन्होंने कहा कि एटलीस्ट उनके पास इतना तो होना चाहिए था कि दैट ही कैन क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करके जाते. इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. अब इतना वो जब वो बोल रही थी, मटर्ड मतलब जब धीरे आवाज़ में, स्लो वॉइस में बोलते हैं, तो जब वो अपनी कंप्लेंट्स कर रही थी इंद्रानी देवी, तो करते करते वो थोड़ा सा स्माइल भी कर रही थी. She knew how utterly oblivious her husband was of the practical problems of living. उसे उसे पता था कि जो उसके हस्बैंड हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिकली लाइफ को जीने में. Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? अब उनके जो डॉक्टर थे, क्या उन्होंने बोला था कि दैट स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं सर्दियों में. ठीक है, सर्दियों में उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने थे दत्तादा को. बट ही वुडेंट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर. पर उनको बिल्कुल याद ही नहीं था कि उनको स्वेटर भी पहनना है. इवन इफ़ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर. जबकि वो जो उनका स्वेटर था उनके बेड साइड का जो चेयर था वहाँ पे था, बट फिर भी उनको बिल्कुल याद नहीं आया कि वो स्वेटर वो पहन सके. हाउ कुड ही वेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम. उन्होंने कहा, इंद्रानी देवी कहती है कि कैसे याद भी रहता जब उनकी जो दिव्या है, यानी कि जो उनका टेलीस्कोप है वही उनके ऊपर छाया हुआ है, तो उनको कैसे याद रहेगा कि उनको स्वेटर भी पहनना है.
She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl, and made her way to the roof to break up his tita tita with Dibya. अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा, वो जो वाइट वुलन पुलोवर था, यानी कि उन्होंने जो दत्ता दा की स्वेटर थी उसको लिया और ख़ुद भी शॉल लपेट के जो है वो छत की तरफ जाने लगी, ठीक है, ताकि वो क्या करे, वहाँ पे जाके जो तीता है तीता मीन्स जो प्राइवेट कम्युनिकेशन हो रहा है ना टेलीस्कोप के बीच में और दत्ता दा के बीच में, वो उसको ख़त्म कर सके। शी फाउंड देम बोथ हडल टुगेदर आई टू आई। अब उन्होंने जब वो छत में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो दोनों जो है क्या बोलते हैं, एकदम आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है उनके बीच में, टेलीस्कोप के बीच में, दत्ता दा के बीच में। एटलीस्ट दत्ता दा वॉज लुकिंग इन टू दिव्यास आइज, और क्या हो रहा था, जो दत्ता दा थे वो दिव्या की जो आंखें उनमें देख रहे थे, यानी कि वो अपने टेलीस्कोप में देख रहे थे। When Datta acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्या चक्षु। अब क्या हुआ, जब दत्ता जो थे वो अपने टेलीस्कोप को देख रहे थे तो वो इतने खुश हो गए थे उसे देख के कि उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, दिव्या चक्षु, ठीक है। दिव्या मीन्स क्या होता है, डिवाइन आई, यानी कि सबसे अलग, ठीक है, और चक्षु मीन्स आई, तो क्या हो रहा था, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, दिव्य चक्षु। To Indrani Devi, the telescope was like a designing woman who had इंसान her husband। और इंद्रानी देवी के लिए वो ऐसा था कि वो टेलीस्कोप बस एक डिज़ाइनिंग वुमेन था जिसने क्या करा था, उनके जो हस्बैंड उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रखा था, जादू कर रखा था, फंसा रखा था। सो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक, और इसलिए वो उसको सिर्फ दिव्या ही बुलाती थी, इंद्रानी देवी। टू दत्ता दा टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। दत्ता दा के लिए जो था वो टेलीस्कोप जो था, वो उनकी जो फुल ड्रीम है, जो सीक्रेट ड्रीम्स थे उनके, उसको फुलफिल करने का काम आ रहा था वो टेलीस्कोप। As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens। अब वो एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे, एमेच्योर मतलब जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थे, ठीक है, ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत सारे सेविंग्स करने के बाद उन्होंने अपने लिए टेलीस्कोप खरीदा, और टेलीस्कोप खरीदने के बाद उसके बाद उनके पास इतना स्पेयर टाइम मतलब इतना खाली टाइम था कि वो क्या कर रहे थे, वो हेवन यानी कि जो कॉमेट था उसको वो ऑब्जर्व कर पा रहे थे। ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी। उन्होंने क्या करा, उन्हें ये टेलीस्कोप तब मिला जब वो क्या हो गए, रिटायर हो गए थे और उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। एम्पल मतलब बहुत सारे पैसे आ गए थे, तब उन्होंने उस टेलीस्कोप को खरीदा था। The telescope was duly installed and long were the dark nights that Datta spent in stargazing। टेलीस्कोप जब उन्होंने खरीदा तो ऐसा बहुत सारा टाइम हुआ कि बहुत सारी लंबी रातें ऐसी थी कि जो दत्ता ने क्या किया था, स्टार देखते देखते ही ख़त्म कर दी थी। एटलीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो। अब इंद्रानी देवी यही सोच रही थी, ठीक है। आगे है, हेयर पुट ऑन द स्वेटर और डू यू वांट नबीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो। अब उन्होंने बोला कि जो इंद्रानी देवी थी उन्होंने बोला कि अपना स्वेटर पहनो, कि तुम्हें ये चाहिए कि कल नबीन बाबू जो है, नबीन बाबू कौन है, अब डॉक्टर है, ठीक है, दत्ता के, उन्होंने तुम्हें यही चाहिए कि कल नबीन बाबू जो है वो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल दें। लाइक एवरी अदर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, दत्ता हैड अ सीक्रेट एम्बिशन। अब उन्होंने बोला बाकी सारे जितने भी नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैं उन्हीं की तरह जो दत्ता थे उनके भी एक सीक्रेट एम्बिशन था, दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट। कि उनका क्या एम्बिशन था कि एक ना एक दिन वो एक कॉमेट जो है उसका डिस्कवर करेंगे, उसको बनाएंगे, ठीक है। फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। उन्होंने कहा कि जो कॉमेट्स है वो भी बिल्कुल नए आएंगे सोलर सिस्टम से। लाइक प्लैनेट्स, कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली इसेंट्रिक। उन्होंने बोला कि जैसा कि प्लैनेट है, प्लैनेट जो है वो हमारे अर्थ के आगे हमारे अर्थ के आसपास राउंड करता है ना, ठीक है, वैसे ही उन्होंने बोला कि जो कॉमेट्स है वो क्या करते हैं, वो भी एक ऑर्बिट है और वो भी सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसके आगे पीछे वो घूमते हैं। So once in a while, a comet comes close to the sun. It has a longish tail that is lit brilliantly by the sunlight, and then it resides into darkness, not to be seen again for years or for centuries। तो उन्होंने बोला कि जैसे जो कॉमेट है वो जब सन के पास आता है तो क्या होता है, वो एकदम बहुत ही अच्छे से चमकने लग जाता है, ब्रिलियंटली चमकने लग जाता है, और जैसे ही वो क्या होता है सन से थोड़ा दूर जाता है तो वो इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है वहाँ पे कि वो फिर पूरे काफ़ी साल तक वो दिखता ही नहीं है कॉमेट। What chance did he stand with his 8-inch Dibya? Didn't professional astronomers have gigantic telescope? अब वो कह रहे हैं कि
जो दत्तादा है उनके पास तो बहुत छोटा सा टेलीस्कोप है, तो इससे तो क्या ही चांस होगा कि वो कभी कोई कॉमेट बनाएंगे। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास तो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं। Datta was optimistic. He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. और जो दत्तादा थे उनको पता था कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं जितने भी फेंट स्टार्स मतलब जिनके कलर्स नहीं होते, ठीक है, फेंट स्टार्स हो गए और जितनी बहुत सारी गैलेक्सीज जो हो गई उनके बारे में पढ़ते हैं वो लोग मोस्टली। वो लोग कॉमेट के बारे में नहीं सोचते। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज कॉमेट। और उन्होंने कहा कि वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जैसे कि कॉमेट वगैरह हो गए इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनी वे, और वो इसको देखने की भी बिल्कुल कोशिश नहीं करते। Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed. अब इसीलिए क्या हुआ, जितने भी एमेचर्स हैं, ठीक है, जो नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो क्या करते हैं, इन प्रोफेशनल्स को भी जो चीज़ें नहीं दिखती है वैसा कॉमेट ये लोग खुद डिस्कवर करते हैं। एंड इट लुक टू दत्तादा दैट टुनाइट वॉज गोइंग टू बी द बिग नाइट। और ऐसा लग रहा था दत्तादा को देख के कि आज की रात जो है वो बहुत लंबी रात होने वाली है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर। अब इन्हीं स्टार्स के बीच में दत्तादा ने जो था एक फेंट स्ट्रेंजर को देखा था, ठीक है। ही री एग्जामिन्ड द चार्ट्स विद हिम, checked his dibya for any smudge of the optics, did some calculation on his pocket calculator and torchlight. For though absent-minded about daily chores, he was meticulous in his observations. अब क्या हुआ, जब उन्होंने वो फेंट स्ट्रेंजर्स देखा तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एग्जामिन करने लगा, ठीक है, एग्जामिन करने लगे, उन्होंने अपने दिव्या से उसको अच्छे से देखने लगे, उन्होंने अपने जो पॉकेट कैलकुलेटर था उसमें कैलकुलेशंस करने लगे और उसके बाद अपने माइंड में ही उन्होंने ऑब्जर्वेशंस करने स्टार्ट कर दिए। Yes, there can be no mistake. What he was looking at had not been there earlier and it did look like a new comet. अब क्या हुआ कि ये बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जो देखा वैसा पहले कभी नहीं दिखा था और उन्हें ऐसा लगा कि दैट ही माइट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट। वो क्या है, एक नया कॉमेट है। 2 days later द आनंदा बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़। अब 2 दिन बाद एक आनंदा बाजार पत्रिका था, एक न्यूज़पेपर का नाम था, ठीक है, उसमें एक न्यूज़ प्रिंट हुई, क्या था, कैलकाटा मैन डिस्कवर्स न्यू कमिट। कैलकाटा के एक इंसान ने नया कमिट डिस्कवर किया। श्री मनोज दत्ता, अ रेजिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट of Calcutta, has claimed to have discovered a new comet. He has seen the comet as on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics at बेंगलोर ऑफ इट्स वेयर अबाउट्स। अब क्या हुआ, इसमें क्या बोला कि जो मनोज दत्ता है जो कहाँ पे रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नया कॉमेट जो है उसको डिस्कवर किया, नए कॉमेट को उन्होंने बनाया है, ठीक है। उन्होंने ये जो कॉमेट था उसको 2 रात पहले देखा था और उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन किसको दी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को, जो कि बेंगलोर में है, इन्होंने उसकी खबर जो है उनको दी थी। The IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at कावलपुर। क्या हुआ, जो IIA है उनके पास 90-inch टेलीस्कोप था जो कि एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। If it confirms Datta's finding, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. उन्होंने कहा कि अगर दत्तादा की जो फाइंडिंग थी, यानी कि जो उन्होंने जो कमेट उन्होंने फाइंड किया था, अगर वो चीज़ प्रूफ हो गई, करेक्ट हो गया, तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है उनके करियर का, जो कि एज अ एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर उनकी लाइफ का वो बहुत बड़ा जो समिट हमने पढ़ा था ना कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सक्सेस उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल कर लिया। Datta, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimate that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. दत्तादा, अब दत्तादा जो है उनको उनके जितने भी फ्रेंड्स और जितने भी उन लोगों को पसंद करते हैं दत्तादा को, वो लोग उनको दत्तादा के नाम से बुलाते थे, ठीक है। उन्होंने बोला था कि अगर देखना कुछ टाइम के बाद जो कॉमेट है वो इतना अच्छा हो जाएगा, इतने पास हो जाएगा, हमें क्या है वो नेकेड आई, यानी कि हमें अपनी जो नॉर्मल आई आँखें हैं हम उनसे भी देख सकते हैं। कुछ महीनों में कॉमेट जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसको आराम से देख सकेंगे। ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी टू हिज 8-inch टेलीस्कोप विच ही कॉल्स दिव्या। और उन्होंने क्या करा, सारा क्रेडिट जो है अपने वो छोटे से 8 इंच के टेलीस्कोप को दिया था, उन्होंने सारा क्रेडिट, जिसका नाम क्या था, दिव्या।
ठीक है। Thereafter, it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. For the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after his discoverer. अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो कमेट था उसका नाम क्या रख दिया था, कमेट दत्ता, ठीक है, उसी के नाम से सब लोग उसको याद करने लगे। तो क्या हुआ, कुछ के टाइम के बाद जो IIA था उसने क्या करा, उसने कंफर्म किया कि येस देयर इज़ अ न्यू कमेट, और उन्होंने उस न्यू कमिट का नाम जो था उनके नाम पे रख दिया। दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तादा। और इस तरीके से जो दत्तादा थे, जो इंट्रोवर्ट थे, इंट्रोवर्ट मतलब ऐसे लोग जो बहुत शाई टाइप के होते हैं, जो ज़्यादा बात नहीं करते, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट टाइप के जो दत्तादा थे उनके लिए एक तरीके से पब्लिसिटी आने लगी, वो पॉपुलर होने लगे। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। अब बहुत सारे ऐसे फंक्शंस इवेंट्स होने लगे जिसमें दत्तादा को इनवाइट किया जाने लगा, वो वहाँ पे जाने लगे, उन्हें अटेंड करने लगे। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, दत्तादा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कमिट। अब क्या हुआ, जब ऐसी ही एक सेरेमनी से दत्तादा जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने धीरे धीरे बोलने लगे कि काश मैंने कोई कमिट डिस्कवर ही नहीं किया होता, तो मुझे इतना किसी सेलिब्रेशंस में, इवेंट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी अग्रीड, आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीज़न। अब उन्होंने बोला, उनकी जो वाइफ थी दत्तादा की, इंद्रानी देवी, उन्होंने भी बिल्कुल बोला कि हाँ, आई ऑल्सो अग्री, कि मैं भी इससे अग्री करती हूँ कि तुम्हें कोई फाइंडिंग करनी ही नहीं चाहिए थी, पर मेरा जो रीज़न है वो बहुत अलग है। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड द कमिट, दत्तादा आस्क। दत्तादा ने जब अपनी वाइफ से पूछा कि मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्यों विश कर रहे हो कि मुझे कोई डिस्कवरी करनी ही नहीं चाहिए थी। Comets bring ill luck, and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one, इंद्रानी देवी said with concern। अब इंद्रानी देवी ने क्या बोला कि जो कमेट है वो अपने साथ इल लक लेके आता है, यानी कि बैड लक लेके आता है, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जैसा जो अच्छा इंसान है वो इससे जुड़े या इसकी डिस्कवरी करे, ठीक है। Dattada laughed. I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions। दत्तादा जो थे, अब उनकी बात सुन के इंद्रानी देवी की वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है एक ऐसा इंसान जिसके पास MA की डिग्री है वो ये कह रहा है और वो इस सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास पे बिलीव करता है। देयर इज़ नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर विद द अराइवल ऑफ अ कमेट एंड द कैलेमिटीज़ ऑफ द अर्थ। उसने बोला कि दत्तादा ने बोला कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कमेट्स और कुछ जो नेचुरल कैलेमिटीज़ अर्थ में हो रही है और कमेट जो है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इज़ वेल अंडरस्टूड। उन्होंने बोला कि जो कमेट्स है उनके बारे में साइंस में पढ़ा जाता है और उनका जो कंपोजिशन यानी कि जिस तरीके से वो बनता है वो भी बहुत अच्छे से उसी में समझा जाता है। देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, इनके बारे में कुछ हार्मफुल यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वेल यू विल सून सी दिस कमिट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एनजाइटी टू एनीबडी। उन्होंने कहा कि फिर भी तुम ये देखना बहुत जल्दी मेरा जो ये कमिट है वो यहाँ से पास हो जाएगा, चला जाएगा और किसी को ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। इन दिस लास्ट कमेंट हाउएवर दत्तादा वॉज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। और ये जो उन्होंने लास्ट में कमेंट किया था ना कि मेरा कमेंट किसी को हार्म नहीं करेगा, ये जो था ये बिल्कुल भी सही नहीं था। उनकी इस बात को गलत प्रूफ किया गया था। वो कैसे हुआ था, वी विल स्टडी दैट इन द नेक्स्ट पार्ट, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।